Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyatan तो श्रीमद् भागवतम से हम पठन कर रहे हैं अध्याय जो स्कंद पहला और चैप्टर जो है यानी अध्याय 19वां। और आज का जो श्लोक है वो है श्लोक संख्या 7 और श्लोक संख्या 8। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले समझने का प्रयास करते हैं और गुरु का आश्रय लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्लोक पहले पढ़ लेते हैं, श्लोक उसके बाद अनुवाद और उसके बाद तात्पर्य पढ़ लेते हैं। तात्पर्य छोटे हैं तो उसके साथ में हम लोग उसको भी कवर कर लेते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने दर्शाई है, जिसके माध्यम से हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो तात्पर्य तुरंत पढ़ लेंगे और अनुवाद भी देख लेते हैं। तो श्लोक संख्या 7 इस प्रकार से, इति व्यवच्छिद्य पंदये प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां ददाौ मुकुन्दाङ्गृहम् अनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Thus the king, the worthy descendant of Pandavas, decided once and for all and sat on the Ganges bank to fast until death and give himself up to the lotus feet of Lord Krishna, who alone is able to award liberation. So freeing himself from all kind of associations and attachments, he accepted the vow of a sage. Purport. The water of Ganges sanctifies all the three worlds, including the gods and demigods, because it emanates from the lotus feet of personality of Godhead Vishnu. Lord Krishna is fountainhead of the principles of Vishnu Tattva, and therefore shelter of his lotus feet can deliver one from all sins, including an offense committed by a king unto a Brahmana. Maharaj Parikshit therefore decided to meditate upon the lotus feet of Lord Krishna, who is Mukunda, or the giver of liberation of all descriptions. The bank of Ganges or the Yamuna gave one a chance to remember the Lord continuously. Maharaj Parikshit freed himself from all sort of material associations and meditated upon the lotus feet of Lord Krishna, and that is the way of liberation. To be free from all material associations means to cease completely from committing any further sins. To meditate upon the lotus feet of Lord means to become free from the effect of all previous sins. The conditions of the material world are so made that one has to commit sins willingly or unwillingly, and the best example is Maharaj Parikshit himself, who was recognized sinless, pious king, but he also became victim of an offense, even though he was ever unwilling to commit any such mistakes. He was cursed also, but because he was a great devotee of the Lord, even such reverses of life became favorable. The principle is that one should not
willingly commit any sin in his life and should constantly remember the lotus feet of the Lord without deviation. Only in such a mood will the Lord help the devotees make regular progress towards the path of liberation and thus attain the lotus feet of Lord, even if there are accidental sins committed by a devotee. That Lord saves a surrendered soul from all sins as confirmed in all scriptures. Swapada moolam bhajata priyasya त्यक्तानि अभवस्य हरिर परेशा विकर्म यच चोपिता पतिताम कंथचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्ट. श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर श्लोक संख्या 8. भुवान पुनान महानुभाव मुनया सशिष्य प्रयेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं हि तीर्थानि पुनति सन्तः. Translations: at all times all the great minds and thinkers, accompanied by the disciples and sages who could verily sanctify a place of pilgrimage just by their presence, arrived there on the plea of making a pilgrim journey. Purport: when Maharaj Parikshit sat down on the bank of Ganges, the news spread in all directions of the universe, and the great-minded sages who could follow the importance of occasions all arrived there on the plea of pilgrimage. Actually, they came to meet Maharaj Parikshit and not to take bath of pilgrimage, because all of them were competent enough to sanctify the places of pilgrimage. Common men go to pilgrimage sites to get themselves purified of all sins. Thus, the place of pilgrimage becomes overburdened with the sins of others. But when such sages visit overburdened places of pilgrimage, they sanctify the places by their presence. Therefore, the sages who came to meet Maharaj Parikshit were not very much interested in getting themselves purified like common man, but on the plea of taking a bath in that place, they came to meet Maharaj Parikshit, because they could foresee that Srimad Bhagavatam would be spoken by Sukadeva Goswami. All of them wanted to take advantage of the great occasion. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Om Agyantimirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadandikam. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayavadaya Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यतेशतारि. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो जैसे हम ये पहला जो श्लोक है उसके ऊपर हम कुछ जो बातें मैंने सुनी है, जो मुझे समझ में आई है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. श्लोक संख्या 7. Thus the king, the worthy descendant of Pandavas, decided once and for all and sat on the Ganges bank to fast until death and give himself up to the lotus feet of Lord Krishna, who alone is able to award liberation. So freeing himself from all kinds of association attachments, he accepted the vows of a sage. अगर इसका जो ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद हम पढ़ते हैं तो उससे हमको परीक्षित महाराज की एक स्थिति याद आती है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण रूप से समर्पण. जब भौतिक जो कल्मशों से हम पथाड़ित हो जाते हैं तो हम किसका आश्रय लेते हैं? हम भगवान का आश्रय लेते हैं. तो इससे एक सिचुएशन याद आती है, इससे एक संदर्भ याद आता है, जो है भगवत गीता के अंदर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक के अंदर, जो 7वां श्लोक भगवत गीता का है, जहां पर अर्जुन की स्थिति इस प्रकार से बताई गई है. तो श्लोक संख्या भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक क्या है? कार्पण्य दोषोपथ स्वभाव. इट टॉक्स अबाउट द सरेंडर. वहां पर जो है अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जो है अपनी स्थिति प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि अब
मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं पूर्ण रूप से कार्पण्य दोष हो। कार्पण्य जो शब्द है वो आता है कृपण से, और उसका विपरीत शब्द होता है ब्राह्मणा। तो कृपणा और ब्राह्मणा, तो कार्पण्य कृपणा, कार्पण्य से आता है कृपणा, और दूसरा शब्द उसका विपरीत शब्द है ब्राह्मणा। तो कार्पण्य और जो कृपण है और ब्राह्मण में अंतर क्या है? कृपण जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास, कृपण को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो उसको कहते हैं माइजर। तो एक कृपण जो एक माइजर होता है उसको हिंदी के अंदर कहेंगे कंजूस। तो कंजूस व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है कि उसके पास बहुत बहुत सारी चीजें होती है, बहुत धन होता है, बहुत मूल्य चीजें होती हैं, मगर वो उसको अपने लिए खर्च नहीं करता। न वो अपने फैमिली के लिए खर्च करता है, न वो अपने लिए खर्च करता है। इसके विपरीत जो एक ब्राह्मण होता है वो क्या होता है? वो उदार दिल होता है, वो लिबरल होता है। तो कृपण जो होता है वो कंजूस होता है, और ब्राह्मण जो होता है वो लिबरल होता है, वो उदार दिल होता है। तो कृपण, तो यहाँ पर जो भगवत गीता का जो संदर्भ मैंने अभी उठाया है उसके अंदर अर्जुन कहता है मैं कृपण हूँ, कार्पण्य दोष हो, एक जो है माइजरली जो मेरा एटीट्यूड है उसकी वजह से मेरे अंदर दोष उत्पन्न हो गया है, तो अभी आप मुझे इसका समाधान करो। तो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नो, मैं अभी आपका शिष्य हूँ, पूर्ण रूप से सरेंडर्ड हूँ। जो सरेंडर्ड हूँ तो आप मुझे जो है आपका शिष्य बनाए। तो अगर हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें अध्याय के तात्पर्य के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग कृपण हैं, यानी हम सब कृपण हैं, जितने भी भौतिकवादी हैं वो सब कृपण हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुमूल्य हमारे पास जो है मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य बुद्धि मिली है, मगर हम इतने बहुमूल्य वस्तु के होते हुए भी हम उसका सही माने से उपयोग नहीं करते। सही माने से उपयोग करना यानी हमको इस भौतिक जगत से निकलना है, और इतना बहुमूल्य हमको मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य शरीर के माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के धाम में जा सकते हैं। मगर हम इतना बहुमूल्य शरीर जो है उसको हम उसका जो उपयोग नहीं करते हैं उस मार्ग पे जाने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए। तो इसलिए हमको यहाँ पर जो श्रील प्रभुपाद अपने जो तात्पर्य के माध्यम और आचार्य अपने तात्पर्य के अपने टिप्पणी के माध्यम से हमको समझाना चाहते हैं कि मनुष्य जो जीवन हमको मिला है वो कितना बहुमूल्य है, तो हमें उसका व्यय नहीं करना चाहिए, हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये हमको भगवान की तरफ और भगवान के प्रति सेवा करते हुए हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। मगर हम उसको यूज नहीं करते, इसके लिए हम कृपण हैं, यानी हमारे पास ये शरीर होते हुए भी हम उसका सही माने में उपयोग नहीं करते। और उसके बाद में उसी श्लोक के अंदर जो अर्जुन कहते हैं शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं पूर्ण रूप से आपको सरेंडर हूँ। तो जब हम ये सरेंडर शब्द सुनते हैं तो हमको एक डर सा लगता है कि ये सरेंडर यानी पूर्ण रूप से जो है भगवान के समक्ष झुक जाना है, भगवान के सामने जो है नतमस्तक होना है, या किसी के आगे भी सरेंडर जो हम कोई शब्द यूज करता है तो यूजुअली हम देखते हैं कि किसी गुंडे ने आके हमारे सर के पीछे बंदूक की नाल लगा दी, और वो क्या कहता है अंग्रेजी के अंदर कहता है हैंड्स अप। हैंड्स अप का अर्थ क्या होता है? यानी आप पूर्ण रूप से अभी मेरे वश में हो, और इस स्थिति के अंदर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह जब जो हम भौतिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो भौतिक प्रॉब्लम्स है वो हमारे सर के पीछे हमेशा लगे रहते हैं, पर कब पता नहीं कब वो जो बंदूक की नाल से गोली निकल जाए और हम धराशायी हो जाएं। तो हमको उस समय क्या करना चाहिए?
तो ऐसी स्थिति में हमको हमारे हाथ ऊपर करने चाहिए। जिस तरह अगर कोई गुंडा हमारे सर के पीछे बंदूक रख देता है तो हम अपने हाथ ऊपर कर देते हैं कि ठीक है भाई, मैं भी पूरा तुम्हारे कंट्रोल में हूँ। तो ठीक उसी तरह जब भी हम अपने हाथ ऊपर करने चाहिए, मगर हाथ हम किसके लिए ऊपर करेंगे? हम हाथ ऊपर करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए। जिस तरह द्रौपदी जी ने किया था कि वो कंप्लीट रूप से सरेंडर हो चुकी थी, ठीक उसी तरह हमको भी कंप्लीट रूप से सरेंडर होना चाहिए। और सरेंडर कंप्लीट रूप से सरेंडर का मतलब क्या है कि किसी मतलब भौतिक बंदूक है वो हमारे सर के पीछे लगी हुई है, तो हमको शरणागति किसकी लेनी है? तो भगवान श्री कृष्ण की। और किस तरह से लेनी है? तो ठीक उसी तरह जिस तरह जब बच्चा चाहता है, छोटा सा शिशु चाहता है कि माँ उसको अपनी गोद में उठाए, और वो तब बच्चा क्या करता है, अगर माँ उसको उसकी गोद में अपनी गोद में नहीं उठाती तो बच्चा क्या करता है? रोता है, बिलबिलाता है और अपने हाथ दोनों ऊपर करता है और माँ को बार-बार इशारा करता है कि आप मुझे उठाओ। ठीक उसी तरह भौतिक प्रॉब्लम से जब हम जूझ रहे हैं, हम पूर्ण रूप से सरेंडर किसके हो जाए? भगवान श्री कृष्ण के हो जाएं। और ठीक उसी बच्चे का जो भाव है, उसी तरह हमारा भाव होना चाहिए कि भगवान से हम कहें कि मैं पूर्ण रूप से सरेंडर हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। और उसी तरह हमको बिलखना चाहिए, जिस तरह वो बच्चा बिलखता है अपनी माँ को देख के कि आप मुझे गोदी में उठाओ, ठीक उसी तरह हमको भगवान श्री कृष्ण के सामने झुककर, उनके सामने समक्ष हाथ उठाकर हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सरेंडर, तो एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसका मतलब समझाया। उन्होंने कहा सरेंडर का मतलब क्या होता है? तो किसी के पैरों के नीचे या अंदर अपना सर रखना, उसको सरेंडर कहते हैं। कितनी सुंदर तरीके से समझाया है कि किसी के पैरों के नीचे या अंदर, उनके पैरों के तलवे के अंदर अपना सर रखना, उसका मतलब होता है सर अंदर, यानी सर अंडर। तो सरेंडर, वी मस्ट पुट अवर हेड एंड ईगो, जो हमारा अहम है हमारा वो, और हमारा जो हमारे अंदर जो अहंकार है, उसको पूर्ण रूप से किसी शुद्ध भक्त या भगवान के चरणों के नीचे हमको रखना है। इसके सही माने में सरेंडर कहते हैं। तो यहाँ पर एक दूसरा, जो अगर हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य के अंदर दूसरा एक स्टेटमेंट आता है, द बैंक ऑफ गैंजेस और यमुना गिव वन अ चांस टू रिमेम्बर द लॉर्ड कंटिन्यूअसली। तो इस संदर्भ के अंदर मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो यानी ये क्या श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पर लिखा है, जो गंगा जी और यमुना जी के तट हैं, वो हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा सतत स्मरण कराते हैं। तो ये हम सोचेंगे कि ऐसे कैसे संभव है कि गंगा के तट के ऊपर वो तो एक नदी है और यमुना एक नदी है, उसके तट पे बैठ के कैसे हम भगवान को याद कर सकते हैं? या वो हम उसमें इतनी कैसी शक्ति है कि वो हमको भगवान के बारे में स्मरण कराएं? उनके तट ऐसे कितनी शक्ति है कि वो हमको स्मरण कराएं? तो ये प्रश्न उठ सकता है हमारे मन के अंदर। तो एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर के अंदर एक जगह है, जर्मनी के अंदर जगह है जिसका नाम है डकाओ। डकाओ नाम की जगह है, जिसको अगर आप गूगल आउट करेंगे तो DACHAU, ये जर्मनी के अंदर एक जगह है। और ये नाजी जो थे, उनके कंसंट्रेशन कैंप थी। वहां पर जितने भी मतलब पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे हिटलर के, वो वहां पर उन्होंने कैदी करके रखा था। तो न केवल वहां पर ज्यूज यानी इजराइल के लोग थे, वहां पर रोमानी लोग थे, उसके बाद में ऑस्ट्रिया के लोग थे, इनको उन्होंने जो है बंदी बना के रखा हुआ था। तो ये जो कंसंट्रेशन कैंप बनाया था 22 मार्च 1933 से बनाया था, और ये 1945 तक ये कैंप वहां पर 12 साल तक वहां पर वो कैंप था। उस कैंप के अंदर हिटलर और हिटलर के लोगों ने, हिटलर के जो बात समझने वाले हिटलर के जो अनुयायी थे, उन्होंने इतनी जो वहां पर लगभग कहते हैं कि 33,000 लोगों को उन्होंने काट दिया था। वहां पर उनको अलग अलग यातनाएं देके उनको मार दिया था। तो मैं ये बात यहाँ पर इसके लिए बता रहा हूँ कि डकाओ जो शहर है जर्मनी के अंदर, वहां पर जाएंगे तो वहां पर आप वो जो जगह है, जो कंसंट्रेशन कैंप है, उसके अंदर अगर आपने आधा या पौना घंटा भी वहां पर जो शहर कर ली, घूम लिया वहां पर, तो आप वहां से ऐसे आपको आभास होगा कि आपको यहाँ से तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि वहां पर इतने लोगों को मारा गया था यातनाएं देकर। तो वो उसका जो माहौल है, वो जो जगह का जो ऐसा
वातावरण हो गया है कि वहां पर आप आधे घंटे पौने घंटे से ज्यादा ठहर नहीं सकते, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। और उसके बाद में वहां पर कहते हैं कि वहां पर जो जिस समय पे ये हिटलर ने वह कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर जिन लोगों को उनको अलग अलग यातनाएं देके उनको मार दिया था, तो वो यातनाओं के ऊपर वहां पर डॉक्यूमेंट्री है, पिक्चर है। तो वो अगर पिक्चर अगर हम वहां पर दिखाते हैं, आधे पौने घंटे की पिक्चर है, तो वो कहते हैं अगर आपने वो पिक्चर देख ली पूरी, तो अगर जो नॉर्मल मनुष्य है वो अगर वो पिक्चर देख लेगा या वो पूरी सीन देख लेगा, तो वो महीनों भर तक वो जो है सो नहीं सकता। जो चैन की नींद उसको नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो उसके अंदर बताया गया है कि किस तरह लोगों को उन्होंने इतनी बेदर्द तरीके से उनको लोगों को मारा था, अलग अलग यातनाएं देकर। तो वो जब अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आप महीनों भर आप सो नहीं सकते। तो कहने का मतलब है, जब ये भौतिक जगत के अंदर ऐसी सब जो चीजें हैं जो हमको इतना प्रताड़ित कर देते हैं, इतनी परेशान कर देती हैं, इतनी हमको दुखी कर देती हैं, तो ये एक तो मामूली सा उदाहरण है। तो हम क्यों नहीं ये मतलब विश्वास करते हैं कि गंगा जी और यमुना जी के ऊपर अलग अलग भगवान के और भगवान के भक्तों की लीलाएं हुई, तो वहां पर उसमें पोटेंसी क्यों नहीं हो सकती? तो ये हमको इस बात का ज्ञान देती है कि डेफिनेटली वहां पर भगवान की जो लीलाएं हैं और भगवान के भक्तों ने अलग अलग जो वहां पर चर्चाएं की हैं, वो वहां पर जो वातावरण है उसमें गूंज रही है, और वही हमको जो है भगवान को हमेशा सतत याद कराएंगे। तो ये एक बात ख्याल में आई थी। उसके बाद में आता है कि इस जो तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि भौतिक जगत से अगर आप सही माने में मतलब सही मतलब क्या होता है कि आपको भौतिक जगत के अंदर से आपको विरक्ति चाहिए। तो इसमें जो शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अगर आपको पूर्ण रूप से मुक्ति चाहिए, भौतिक आसक्तियों से मुक्ति चाहिए, तो शिला प्रभुपाद यहाँ बताएं, टू बी फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एसोसिएशन, भौतिक जो आपका संग है उसके साथ में अगर आपको पूर्ण रूप से जो निवृत्ति चाहिए, उसे छूटना चाहिए, एंड और साथ साथ में अगर आपको पाप की जो वृत्ति है, पाप करने की जो वृत्ति है, उससे आपको उसको पूर्ण रूप से बंद करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं, टू मेडिटेट अपॉन द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ ऑल द प्रीवियस सिंस। अगर आप भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे और उनका आश्रय लेंगे, तो आप इन भौतिक वस्तुओं से भी छुटकारा पा सकते हैं, और आपकी जो टेंडेंसी है जो आगे और पाप करने की, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जो परीक्षित महाराज थे, he was cursed, but because he was a great devotee, even reverses of life become favorable। तो यहाँ पर दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि परीक्षित महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और बहुत अच्छे भक्त थे। तो उनको जो ये श्राप मिला था, जो ब्राह्मण के बेटे ने दिया था, उनको जो श्राप दिया था, वो भी एक तरह से एक बेनिफिशियल हो गया। बेनिफिशियल यानी वो आपके लिए वो भी एक सहायक बन गया, और उन्होंने उसको इस तरह से लिया कि ये भी भगवान की कृपा है। तो ये परीक्षित महाराज की एक बड़ी बात बताते हैं। और आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस तात्पर्य के अंदर कि आपको जानबूझकर, जानते हुए, क्योंकि हमको भगवान ने बुद्धि दी है, तो जानकर हमको कोई पाप नहीं करना चाहिए इस जन्म के अंदर। उसके बाद भी हमसे जो पाप हो जाते हैं, even if there are accidental sins committed by a devotee, यहाँ पर प्रभुपाद एक और profound statement बताते हैं कि अगर किसी कारणवश अगर कोई हमसे जो भक्तों से पाप हो भी जाते हैं, तो लॉर्ड सेव्स द सरेंडर्ड सोल। यहाँ पर फिर से वो सरेंडर सोल को भगवान वहां से बचाते हैं, एज कन्फर्म इन द स्क्रिप्चर्स। तो वो उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला से जो 22.144 श्लोक के अंदर बताया गया, वन हु हैज गिवन अप एवरीथिंग एंड टेकन फुल शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हरि द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज वेरी डियर टू कृष्णा। जिसने सब अपने जो है गिवन अप एवरीथिंग, सब कुछ उसने त्याग दिया है, एंड पूर्ण रूप से भगवान के जो है उन्होंने आश्रय लिया है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो क्या हो जाता है? वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। इफ ही इज इन्वॉल्व इन सम सिंफुल एक्टिविटीज बाय एक्सीडेंट, किसी कारणवश उन्होंने कोई ऐसी जो पाप कर्म किए हैं,
the supreme personality of Godhead who is seated within everyone's heart, जो परमात्मा स्वरूप भगवान अपने हृदय में बैठे हैं, वो इन जो पापों को पूर्ण रूप से खत्म कर देते हैं। तो ये श्लोक संख्या जो है 7 के बारे में था। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 8। तो यहाँ पर एक आता है कि परीक्षित महाराज वहां पर बैठे हैं गंगा जी के तट पर, और ये जो समाचार हैं, ये जो बात है वो पूरे हर ब्रह्मांड के अंदर, वो हर जगह पे बात फैल गई। और ग्रेट माइंडेड सेजेस, और जो बहुत जो उन्नत जो ऋषि थे, जो मुनि थे, जो भी थे, वो वहां पर उन्होंने इस चीज का और इस जो अवसर का जो लाभ लेने के लिए वो क्या करे, वो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए तीर्थ यात्रा होगी, और वो वहां पर जो है परीक्षित महाराज के संग में आके उनका संग लेने का प्रयास करते हैं, और वहां पर आ गए। तो ये ऐसा क्यों है? मतलब दे केम टू मीट परीक्षित महाराज नॉट टू टेक द बाथ ऑफ पिलग्रिमेज। वो वहां पर आए थे परीक्षित महाराज का संग लेने के लिए, वहां पर जो है गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने के लिए नहीं। क्यों? Because all of them were competent enough to sanctify the places of pilgrimage. वो इतने उन्नत भक्त थे, वो इतने उन्नत स्थिति पे थे कि उनके आगमन से वहां पर जितनी भी जो आसपास की जो जगह है, जितनी भी है, वो तो इतने मतलब प्रोफाउंड, इतने पावरफुल थे कि वो नदी जो है, जो गंगा जी है, वो दूसरों के पाप धोती है, तो वो खुद जो है पाप से पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे भक्त और ऐसे शुद्ध भक्त आके वहां पर आते हैं, तो उनके वहां पर आगमन मात्र से गंगा जी पवित्र हो जाती है, ऐसे इसमें तात्पर्य के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर इतने जो लोग हैं वो क्यों आए यहाँ पर? मतलब इतने सारे मुनि हैं जो इतनी उन्नत स्थिति पे है, वो यहाँ पर क्यों आए? तो वो परीक्षित महाराज का संग लेने के लिए आए हैं। तो इस एक श्लोक आता है चाणक्य नीति के अंदर से। तो चाणक्य नीति के अंदर वो बताते हैं कि जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयं एव विस्तार वस्तु शक्तितः। इसका मतलब क्या होना? जले तैलम, जिस तरह अगर एक बड़ा बर्तन है, उस बड़े बर्तन के अंदर आप पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसके अंदर सिर्फ आप एक चम्मच जो है आप तेल का डाल दो, तो जिस तरह वो तेल है वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में आपको लगेगा तेल पूरे बर्तन के ऊपर, जो पूरे पानी की परत के ऊपर फैल गया है। तो जले तैलम, जिस तरह तेल जल के ऊपर पूर्ण रूप से फैल जाता है। दूसरा क्या बोलते हैं? खले गुह्यम, यानी एक खलनायक, एक विलेन है आदमी, उसको आपने एक गुह्यतम यानी बहुत जो सीक्रेट बात आपने उसको बता दी है, तो वो पूरी बात जो है पूरे जो आसपास के जितने भी लोग हैं उनके पूर्ण रूप से वो फैल जाएगी, क्योंकि उसका काम ही है। वो खलनायक का काम क्या है? आपके प्रति वो विलेन है, तो वो क्या करेगा? वो खलनायक है, तो वो आपकी जो भी गुह्यतम बात उसने सुनी है आपसे, वो पूरे सबको बता देगा, क्योंकि उसका वो अभी ये दूसरी बात, जले तैलम खले गुह्यम, यानी कोई गुह्यतम बात आपने खलनायक को बता दी, तो वो उसका पूरा प्रचार कर देगा, पूरा प्रसार कर देगा सब लोगों। उसके बाद में तीसरा आता है पात्रे दानम, यानी अगर जो एक सही ब्राह्मण है, सही ब्राह्मण को यहाँ पात्र बताया है, तो अगर सही माने में कोई ब्राह्मण है और उसको आपने दान दिया है, तो वो ब्राह्मण क्या कहेगा? वो सब जितने भी लोग हैं उनको कहेगा कि भाई ये जो यजमान है, या ये जो इन्होंने इतना मुझे जो है दान किया है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा परिवार है। तो पात्रे दानम, यानी सही माने में जो पात्र है, ये सही माने में जो ब्राह्मण है, उसको अगर आपने दान दिया, तो वो क्या करेगा? वो सब लोगों को बताएगा कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसने मुझे दान दिया है, इसने मुझे दान दिया है, इसने मुझे दान दिया है। उसके बाद में आगे क्या कहता है? शास्त्रे ज्ञानम। अभी जो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान कभी भी छुपता नहीं है, कभी न कभी वो शास्त्र का ज्ञान अपने आप बार प्रफुल्लित होता है, प्रसारित होता है, अपने आप होता है, और उसके लिए शुद्ध भक्त आके इसका प्रसार करते हैं। तो जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयं एव, ये अपने आप विस्तार, यानी ये अपने आप विस्तारित होते हैं। अपने आप विस्तारित क्यों देती है? तीनों चीज, जले तैलम, जल के ऊपर अगर आपने तेल डाल दिया,
जो जो खलनायक है उसको आपने गुह्यतम बात बता दी, सही माने में ब्राह्मण जो है उसको आपने सही दान दिया, और शास्त्र का जो ज्ञान है वह स्वयं एवं विस्तार है, वो स्वयं अपने आप वो विस्तारित होता है। क्यों? क्योंकि ये उनकी पोटेंसी है, ये उनकी क्वालिटी है। वस्तु शक्तितः, इन ये सब चीजों, ये सब वस्तुओं के अंदर एक शक्ति है जो अपने आप ही जो है प्रसार होती है, ये इसकी अंदरूनी शक्ति है। तो यहाँ पर भी अगर एक अच्छी बात हो रही है यहाँ पर, जो जितने भी परीक्षित महाराज के साथ में जो ये बात फैली कि परीक्षित महाराज जो अभी है इन्होंने वहां पर बैठे हैं, गंगा जी के तट पर बैठे हैं, तो ये बात भी जो है, क्योंकि यहाँ पर अभी ज्ञान की बात होनी है, तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, क्या बताते हैं कि दे कुड फोरसी, यानी जितने भी वहां पर आने वाले थे वो ये जान सकते थे कि अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की चर्चा होने वाली है। और वो कौन करने वाले हैं? तो वहां सूत गोस्वामी आके इन चीजों का जो है सुखदेव गोस्वामी और सूत गोस्वामी के माध्यम से हमको ये पूरा ज्ञान मिलने वाला है। तो ये जब ऐसी बात आती है तो यह हमको पता चलता है कि इन चीजों के अंदर कितनी शक्ति है। तो जितने भी भक्त वहां पर जमा हुए थे, जितने भी वहां पर साधु संघ जमा हुए थे, वो किस लिए आए थे? वो वहां पर गंगा जी में स्नान करने के लिए नहीं, उसके विपरीत वो वहां पर आए थे। तो यहाँ पर दो बातें बताई गई कि ऐसे अगर जो शुद्ध भक्त वहां पर आते हैं और से उन्नत भक्त वहां पर आते हैं, तो वह गंगा जी को भी वहां पर जो है पाप रहित कर देते हैं। और वहां पर आने का उनका उद्देश्य ये था कि वहां पर उनको ये पता चल गया था कि यहाँ पर आगे चलकर श्रीमद् भागवतम की चर्चा सुखदेव गोस्वामी वहां पर आके करेंगे, और इस वजह से वो वहां पर एकत्रित हो गए। तो ये जो था आज का मतलब जो दोनों श्लोकों के ऊपर जो मैंने सुना था वो मैंने आपके समक्ष रखा है। हरे कृष्णा। इसमें कोई किसी को ऐड करना हो, किसी को कोई पॉइंट्स ऐड करनी हो तो वो ऐड कर सकते हैं, या मुझे कोई करेक्ट करना हो, मेरी कोई बातों को करेक्ट करना हो तो भी आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, आ रहा है प्रभु। या प्रभु, या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। इट वाज वेरी नाइस। जैसे कि आपने शुरू में वो कृपणा के बारे में बता रहे थे कि और फिर उसके बाद वो सरेंडर के बारे में भी आपने बहुत अच्छे से बताया प्रभु, सर अंडर करके। देन दैट स्टोरी वाज देयर कि क्यों हम गंगा के पास जाने के बाद हमारी शुद्धि होती है, पवित्र होते हैं। दैट यू कनेक्टेड विद दैट एग्जाम्पल, वो बहुत बढ़िया था प्रभु। इट वाज मतलब फर्स्ट टाइम मैंने भी वो सुना था प्रभु, तो अमेजिंग प्रभु। इट वाज वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत अलग अलग नए बातें सीखने मिलता है प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु वंस अगेन फॉर क्लास, वंडरफुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा ठाकुर, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। बहुत ही यूनिक क्लास थे। मतलब आपने जब क्लास दी थे कुछ ना कुछ सीखने मिल जाता है। स्पेशली जैसे आपने बोला सरेंडर, सिर का नीचे मतलब पाए, मतलब भगवान का पैर का नीचे हमारा सिर झुकना होता है। तो सरेंडर ये तो एक यूनिक है, मैं पहले सुना भी नहीं यार। गंगा के बारे में मतलब परीक्षित महाराज का जब वहाँ पे गया, आपने जैसे बताया, मतलब सब भक्त लोग आया नहीं, गंगा में स्नान करने के लिए नहीं आए हैं, परीक्षित महाराज का संग लेने के लिए आया था, वहाँ पे भागवतम सुनने के लिए आया था। तो बहुत ही अच्छा क्लास था प्रभु। इट वॉज वेरी यूनिक प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। बहुत बढ़िया क्लास था प्रभु। वही मुझे भी वही पॉइंट बोलना था, सरेंडर वाला जो था। एवरीबडी आई थिंक लाइक दैट पॉइंट। कुछ अपना अहंकार इतना है, मतलब सर को ही अगर किसी के पैर के अंडर रखना, कोई मतलब अंडर तो जाने दो, किसी के सामने झुकना भी एक बहुत बड़ा एक ये होता है, अचीवमेंट होता है। और किसी के पाँव के तलवे के नीचे अपने सर को रखना, दिस इज रियली बहुत ही एक ह्यूमिलिटी वाला पॉइंट है,
जो मतलब हर कोई नहीं कर सकता, वो करना चाहिए हम लोगों को। सिर्फ भगवान के नहीं, अपने गुरु के, सब भक्तों के। तो दिस इज रियली वेरी नाइस पॉइंट, बहुत अच्छा लगा। और वो जो चाणक्य वाला भी जो आपने जो पॉइंट बोला था, दैट इज आल्सो नाइस। तो वो अपना आप श्लोक अगर उसको शेयर कर सकते हैं तो दैट विल बी वेरी नाइस मुझे। बस वही Yeah, अपने Prabhu. I'll share the shloka as well as the translation, as well as the translation of that shloka. I will share it. थैंक यू। इट वाज रियली वेरी वंडरफुल क्लास। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu.